1954, there was the idea of a national school of drama was born in this Sangeet Natak Academy. So the idea was, and they had heard about this very young man in Bombay who was very interested in training. And so they approached Alkazi to formulate a syllabus for the going to be National School of Drama. So Alkazi did. He formulated a very elaborate scheme which will be the curriculum for the NSD. Then a couple of years later, the NSD was established, etc. And they asked him to head it. At which point he said, no, I'm so sorry, I can't do that because A, I'm very young, and B, I don't feel that I'm ready for this kind of a job. So they went on approaching him for many years. And then finally, it was only in the 60s, in 1961, that my father finally said yes. When he came to Delhi, he was only 36 years old, and he was shocked with the kind of theatre that was going on over here, because already things had, moved on in Bombay, because that has a very alive theatre scene. So one of the first things that he did was to select a play like Andha Yug and Dharamveer Bharati's verse play, blank verse play, and he thought of staging it in the grand ruins of Firuz Shah Kotla. The production was quite spectacular because, for one, it was an anti-war play, so it had a very strong theme. And so this, after World War II, was a question that concerned a lot of people, that there shouldn't be a Cold War and then there shouldn't be another war. And so the play had a kind of a political echoes in people's minds. And they also, people were very enamored that, oh my God, how can we see a play in a ruin, and what is it going to be? So it was quite a unique event. And Jawaharlal Nehru said he would be very keen to come and see this event. The day he came late. He came a little late, and my father was a stickler for timing. And he said, listen, everything has to, if we say it's a 6:30 show, it has to begin at 6:30, finish. I don't care who's come, I'm not interested in people come, VIPs. So he started. And then suddenly flurry of activity, who's coming in? So Nehru ji aa gaye, and then he was seated. So my father, I think, just to be polite, he stood up and he asked the audience, excuse me, the Prime Minister has come. So do you mind very much if we start the play again? So, the audience said, no, of course you must do that and all that. And so the play was begun again. बादब बामुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक, आधुनिक भारतीय रंगमंच के पितामह कहे जाने वाले इब्राहिम अलकाजी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी शख्सियत पे कुछ बात करें, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करें। दोस्तों, इब्राहिम अलकाजी जी नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। आधुनिक भारतीय रंगमंच का जिक्र जब भी होगा, उनका जिक्र होगा। भारतीय रंगमंच को उन्होंने नए अर्थ दिए। कहा जा सकता है कि वह आधुनिक भारतीय रंगमंच के एक तरह से पर्याय बन गए। बेहतरीन रंग निदेशक, बेहतरीन शिक्षक, जिन्होंने भारतीय रंगमंच में कई मील के पत्थर स्थापित किए और कई इतिहास रचे। अलकाजी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सबसे लंबे समय तक निदेशक के पद पर रहे। उन्होंने गिरीश कर्नाड के चर्चित नाटक तुगलक और धर्मवीर भारती के मशहूर नाटक अंधा युग का सफल निर्देशन किया और कई नए कीर्तिमान स्थापित किया इन नाटकों के मंचन के साथ। और कहा जा सकता है कि आधुनिक रंगमंच पे एक युगांतर स्थापित किया। नसूरुद्दीन शाह और ओमपुरी सहित न जाने कितने बेहतरीन अभिनेताओं और निर्देशकों की एक लंबी कतार को उन्होंने तैयार किया, एक पीढ़ियों को उन्होंने गढ़ा। इब्राहिम अलकाजी ने भारतीय
रंगमंच को श्रेष्ठता, सुरुचि और आधुनिकता के नए प्रतिमान दिए और उसे विश्व रंगमंच के समकक्ष खड़े होने का साहस भी दिया। उन्होंने कलाकारों की कई पीढ़ियों को अभिनय की बारीकियां सिखाई। 1961 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वे निदेशक बने। फिरोज शाह कोटला के किले को खंडहरों में रंगमंच में तब्दील कर उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। अंधा युग का निर्देशन उन्होंने उसी फिरोज शाह किले के मंच पे किया। उन्होंने वहाँ एक जो नए तरह का एक जो रंगमंच बनाया, उसने बहुतों को प्रभावित भी किया। और कहा जाता है कि उस नाटक को देखने के लिए तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए। और ये भी कहा जाता है कि वो वक्त के बहुत पाबंद थे। जब ये ऐतिहासिक नाटक, जब उन्होंने एक इतिहास रचा अपने निर्देशन में अंधा युग को फिरोज शाह कोटला के किले में मंचन कर, समय था 6:30 बजे शाम के मंचन का समय। नेहरू जी को आने में देर हुई, वो समय से नहीं पहुंचे। लेकिन इब्राहिम अलकाजी के बारे में ये जाना जाता है कि वो समय के पाबंद रहे, ताउम्र रहे। उन्होंने जिस वक्त नाटक के समय का समय दिया, पर्दा 3 घंटियां बजी और पर्दा उठा। कोई बड़ा से बड़ा आदमी उनका मेहमान हो, कोई भी बड़ी हस्ती अगर उनके नाटकों को देखने आ रहा है, वो उनका इंतजार नहीं करते थे। वो नियम के बड़े पाबंद और सख्त उसूल पसंद थे। इसलिए जब नेहरू जी को आने में देर हुई तो उन्होंने नाटक शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब नाटक शुरू हो गया था, तब पर पंडित जवाहरलाल नेहरू मंचन के उनके नाटक को देखने के लिए पहुंचे। उन्होंने बैठाया गया और तब इब्राहिम अलकाजी ने लोगों से और अपने कलाकारों से कहा कि देश के प्रधानमंत्री आए हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम फिर से नाटक शुरू करें। लोगों ने उनकी बात रखी और वो नाटक फिर से शुरू हुआ। तो ये एक जो अनुशासन, थिएटर का अनुशासन जो आज लगभग नहीं है हम थिएटर में, वो अनुशासन उनके जीवन में भी था, निर्देशन में भी था और उनकी तालीम में भी था। उनके बेटे फैसल अलकाजी और अमाल अलना भी रंगकर्मी है। उन्होंने इनकी इंतकाल की जानकारी दी। इब्राहिम अलकाजी भारतीय रंगमंच में उस किंवदंती की तरह हैं जो हमारी पीढ़ी तक दंत कथाओं के रास्ते ही पहुंचे। हमने बहुतों ने नहीं देखा होगा उन्हें, लेकिन जब भी आधुनिक हिंदी रंगमंच की बात होगी तो सब इब्राहिम अलकाजी के नाम से परिचित होंगे, बल्कि उन्हें एक आदर्श के तौर पे मानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय मिथकों और महाकाव्यों का पारायण किए बिना हम उनका अधिकांश जानते हैं या जानने का दावा करते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर से जानना और मिथकीय आवरण से परे के परे यथार्थ छवि देखना तभी संभव हो सकता है जब हम खुद तक उससे पहुंचे। इब्राहिम अलकाजी 1954 में जो लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से प्रशिक्षण प्राप्त थे। बम्बई में अपनी रंगमंचीय गतिविधियां जो आज का मुंबई है वहां शुरू किया, जिसमें प्रदर्शन और प्रशिक्षण दोनों ही शामिल था, वो स्थापित कर चुके थे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का प्रमुख बनने का प्रस्ताव को अपने उम्र के लिहाज से अनुपयुक्त मानकर उस वक्त जब पहला प्रस्ताव उनके पास आया तब उनकी उम्र सिर्फ 29 साल थी और उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक परिकल्पना थी कि इस तरह का एक राष्ट्रीय स्तर का एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की परिकल्पना उन्होंने बनाई और वो चाहते थे कि इब्राहिम अलकाजी उसके पहले निदेशक बने, उनकी देखरेख में ही इस राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपने आकार ले। लेकिन 29 साल की उम्र में जब वो पहली बार उन्हें यह प्रस्ताव दिया गया तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। अपने ही परिकल्पित संस्थान के प्रमुख बनने को सहज नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ठीक 7 साल बाद वे इस प्रस्ताव को मंजूर उन्होंने किया, क्योंकि इस बार वे अपने को तैयार कर लिया था। वो अपने को तैयार पा रहे थे और राष्ट्रीय भाषा में और राष्ट्रीय स्तर पर
काम करने के इच्छुक थे। इब्राहिम अलकाजी के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक बनने के बाद भारतीय रंगमंच फिर वैसा नहीं रहता है जैसा पहले, जो आधुनिक रंगमंच जिसे आज हम देख रहे हैं। इसमें एक बड़ा बदलाव आता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल गढ़ते हैं और ऐसे स्नातक तैयार करते हैं जिसमें संसार का कोई भी रंगमंच गर्व कर सकता है। 1977 के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से त्याग पत्र दिया उन्होंने, और उसके बाद भारतीय रंगमंच में एक बड़ा रिक्त, एक बड़ा शून्य स्थापित हो गया या उत्पन्न हो गया कहा जा सकता है, रंगमंच में भी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी। और ऐसा रिक्त जिसकी पूर्ति वे खुद अपनी वापसी पर भी नहीं कर पाते हैं। ये बातें देवेंद्र राजंगुर, जो खुद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक रहे, उन्होंने एक बार ये बातें कही थी। भारतीय रंगमंच में अलका जी के योगदान की सराहना तो सब करते हैं, लेकिन जब आप खोजने चलते हैं उनकी पूरी जीवन और उनके पूरे काम को और उनके योगदान को, रंगमंच के योगदान तो उनका लेखा जोखा कहाँ है, किसने कैसे उनके रंग कर्म का मूल्यांकन किया है, बहुत मायूसी हाथ लगती है। बहुत कम लिखा गया उनके बारे में और संस्मरणों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। उनके काम पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि उस वक्त आज की तरह मीडिया भी नहीं था और नाटकों का एक जो संसार था वो भी बहुत सिमटा हुआ, सिकुड़ा हुआ था, और अखबार में नाटकों को जगह देना तब के बहुत एक दुर्लभ बात मानी जाती थी। इसीलिए संस्मरणों के अलावा कहीं कुछ नहीं मिलता। क्या ये विडंबना नहीं है कि इब्राहिम अलकाजी पर एक मुकम्मल किताब तक नहीं है, ना अंग्रेजी में ना हिंदी में। ये एक बड़ी कमी है, खासकर वर्तमान रंगकर्मियों, शोधार्थियों, रंग प्रशिक्षकों व हम जैसे लोगों के लिए भी, जो उन्हें संपूर्णता में जानना समझना चाहते हैं। हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि भारतीय रंगमंच में एक पैराडाइम शिफ्ट पैदा करने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था, वो अपनी सोच को क्रिया में कैसे रूपांतरित करते रहे, उनके प्रयासों को उनके समय, उनके बाद के समय का रंगमंच कैसे ग्रहण करता रहा और समय के इतिहास में उनकी अपनी ऐतिहासिक भूमिका या ऐतिहासिक मौजूदगी का मतलब क्या है, अब वे नहीं है तो ये सब बातें और भी महत्वपूर्ण है। एक महान रंग शिक्षक और रंगमंच के दुर्लभ शिल्पकार श्री इब्राहिम अलकाजी को सादर नमन और सलाम। बहुत पहले राज्यसभा टीवी ने उनका एक इंटरव्यू किया था, कहीं 25 मिनट का, उसका एक अंश हमारे साथी, हम लोग एक पत्रकारिता के जीवन में जो बहुत कुछ लोग मुलाकात करते रहे हैं, उसमें इरफान है। इरफान रंगमंच, फिल्म, थिएटर वगैरह से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। उन्होंने इब्राहिम अलकाजी से ये इंटरव्यू किया था, उसका एक अंश देखे हम यहाँ साभार राज्यसभा टीवी से उसे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि उनके जीवन को हम थोड़ा बहुत ही सही समझ सके और बादब बा मुलाहजा में उनके काम को हम सम्मान भी दे सके, और अब जो वह नहीं है तो उन्हें खिराज अकीदत भी हम पेश करें। राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम गुफ्तगू में आज हमारे साथ मेहमान हैं इब्राहिम अलकाजी, जो कि हिंदुस्तानी कॉन्टेम्प्रेरी थिएटर का पर्याय माने जाते हैं। इब्राहिम अलकाजी, वो नाम जिसके बिना 20वीं सदी के हिंदुस्तानी थिएटर का जिक्र पूरा नहीं होता। इब्राहिम अलकाजी 1962 से 1977 तक दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक रहे। कला की विभिन्न विधाओं के संरक्षक और कला प्रेमी इब्राहिम अलकाजी ने अपने सक्रिय नाट्यकर्म के दिनों में कई यादगार नाटक किए। 50 से भी ज्यादा ये नाटक आज भी मील के पत्थर माने जाते हैं। नाटक और फिल्मों में उनके तराशे हुए कई अभिनेता और निर्देशक आज शोहरत की बुलंदियों पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है इब्राहिम अलकाजी साहब आपका प्रोग्राम में। सबसे पहले हमको ये बताइए कि थिएटर में ये जो आपका सफ़र शुरू हुआ
वो कब और किन वजूहात से शुरू हुआ होगा? मेरे वालिद साहब अरबस्तान के थे, मेरी वालदा भी, और वो दोनों जन साथ में दिल्ली आ गए, माफ़ करना, बम्बई आ गए, और बम्बई के बाद वो पूना पहुंच गए। और मेरी एजुकेशन जो थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसका मतलब ये होता था कि घर में भी मेरे एक किस्म की ट्रेनिंग होती थी अरबी लैंग्वेज में और कुरान शरीफ में, और जब हम स्कूल जाते थे वो सिर्फ अंग्रेज़ी में ही गुफ्तगू मुझे मौका मिलता था। उन दिनों में जंग भी, वर्ल्ड वॉर 2 था उस वक्त, तो काफ़ी शिद्दत थी डिसिप्लिन में, और लेकिन उसके बावजूद ये बहुत अच्छे लोग थे, कम्प्लीटली डिवोटेड टू देयर वर्क, very compassionate, very understanding, and we were able to communicate effectively. And for them, theatre was very, very, very important. And they gave me opportunities to perform in the theatre. And so, St. Vincent's High School, in which I was a student, had a very fine reputation for its theatre background. My father felt it was very important for me to have a classical education in Arabic, because I'm an Arab, and Arabic is the mother tongue. And the Quran Sharif is also Arabic. So on the one hand, while I had a St. Vincent's High School for training in English, and then later on also in French, because also in English you had to have a second language when you were in that kind of institution. At home, all my training was in Arabic, completely in Arabic. So to a certain extent, while there were certain limitations to this, it opened up a whole world to me. It opened up half of mankind to me. आप लोग कितने भाई बहन? Well, we were a family of 9 eventually. And my father was very conscious of this, because every year he had asked my mother to be put down, because every year she produced a child. So over a period of time we were 9 children. And so that was also wonderful. But in the family, in the compound that we had, it was a very, very large compound. There were Parsis who were living over there. There were Anglo-Indians who were living over there, whose medium was, of course, English, etc., and broken Hindi, Hindustani, etc. And there were Maharashtrians also living over there. ये आप पूना की बात कर रहे हैं? जी हाँ, पूना की बात। जी, पूना में जब आपकी पढ़ाई पूरी हुई, जी हाँ, वहाँ से लेकर मैं समझता हूँ कि NSD आने तक के बीच में क्या वजह रही होंगी? On one occasion, when I was half asleep, around 11 o'clock or so, the doorbell rang. And I went to the staircase to see that who had rung the doorbell. And I'd watched outside. And here was a very unkempt, dirty-looking British soldier with his knapsack, with everything, etc. And I said, yes. He said, I'm so-and-so. He gave a British name, etc. I said, yes. He said, I've come from the front. I said, what do you mean from the front? I've come from the Burmese front. I was with your brother at the Burmese front. And your brother gave me your address, and therefore I've come to you. And may I spend the weekend with you? So like this gives you contacts with people from all over the world. The German fathers were very, very good. They were very thorough in the teaching of languages. So it was a German who was teaching us English. It was a Frenchman who was teaching us English. From this, that our knowledge of language also, of languages also spread out. तो फिर इसमें नाटकों में आपका कैसे आना हुआ? Every Jesuit school always had a drama department. Always had a drama department. They prided themselves on that. And therefore Father Ricklin, who was the head of St. Vincent's High School, where I was a student, he would himself conduct all the rehearsals, etc. there. He would provide the music also, because there's a school orchestra. And there were students from the school who provided the orchestra. And therefore that was a very rich kind of a cultivation of taste in so many different modes of communication. तो आपने कौन सा प्ले सबसे पहली बार किया? They were first one-act plays, because you were a young student and you did not have the energy, etc., and the capacity to do a 3-act play or a 4-act play and the rest of it. And then later on, of course, the Jesuits saw to it that as we went along, the standard improved. It became better and better and better and better, so that over a period of time you could quite easily do Shakespeare also in the language in which you were taught. फिर आप ड्रामा स्कूल कैसे पहुँचे यहाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में? In Bombay, I did a large number of plays in the English language through Parsi organizations, because the Parsis were very fond of the theatre, and they would put on plays. Quite frequently they were influenced by Hollywood, and they were influenced by
cheaper comedies and the rest of it. I was interested in the classics. And then over a period of time I began to realize what were the weaknesses in the kind of work that we were doing. It was important for me to find my roots in the classics of any culture that I was investigating. And my father had provided a complete library for it. So on the one hand we had a library of Arabic books and so on, which we were taught with the Arabic teacher. And then on the other hand there was a complete room full of books. And you will see this continued over here. I'd welcome you to go to any one of these cupboards, etc., that you find over here, and you find everywhere there's nothing but books and books and books and books. When Father Ricklin found that my interest in the theatre was so great, he said, Al-Qazi, you must go to England now. So after finishing my school course, etc., I took the boat and I went to England. And I was received there with open arms. It was absolutely fantastic. फिर राडा से होते हुए आप दिल्ली पहुंचे? दिल्ली आ गया, जी हाँ. और वहाँ मैंने काफ़ी काम शुरू किया. And then there were very few theatres, actual theatres showing works on the stage. And therefore I felt that I needed to have a theatre of my own. And I was helped a great deal. The Prime Minister, they heard about the reputation that I had also been to England, that in England I was supported a great deal. Now in England I was not only supported that way, and they wanted me to come to Delhi, and they had run out of people, and they didn't find the people who were working with them in the theatre good enough, etc. And they invited me and they gave me carte blanche, unrolled a carpet in front of me, and they requested me to take charge of the theatre. Therefore that opened up, because that opened up their entire library to me. And as I mentioned to you, their library was very good. तो जब आप दिल्ली पहुंचे, जी हाँ, तो थिएटर का क्या सीन था? There were 2 or 3 theatres which were set up as theatres in Delhi. But those people had no idea of the theatre. They were just put up for comedies, for light plays and so on. They had no sense of the dramatic elements of theatre and how to utilize them on the stage, how to utilize them in terms of the space, in terms of lighting and so on and so forth. गुफ्तगू में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम और आप होंगे इब्राहिम अल-काज़ी की ज़िंदगी के और पन्नों के साथ. राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम गुफ्तगू में हम हैं आज इब्राहिम अल-काज़ी के साथ.